वेलकम स्टूडेंट्स। आज आप गल करांगे एरेस की। सब तो पहले आप देखेंगे कि एरे एक्चुअली हुंदा की है। ठीक है, एन एरे इज अ कंटेनर विच कैन होल्ड अ फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स एंड दीज आइटम्स शुड बी ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशन के अंदर इन होमोजीनियस डेटा टाइप भी बोल देंगे, होमोजीनियस एलीमेंट्स जिन्हों के अंदर सेम टाइप के एलीमेंट्स हो उसको की बोलते हैं, आप एरे बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ज़्यादातर डेटा स्ट्रक्चर्स ने जोड़े की करते हैं अपने एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जोड़ा एरेस ही यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करिए लिंक लिस्ट की, नैक्सट जो आप फरदर पढ़ांगे स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्रीज, ऑल दीज डेटा स्ट्रक्चर्स make use of arrays to implement their self. Okay, now some of the important terms, those are necessary to understand the concept of an array. First one is element. Element जो भी आइटम एरे के अंदर स्टोर है, जो भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं आप उसमें बेसिकली की बोलते हैं एलिमेंट। तो सेकंड वन इज इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स location of an element. Okay, and this location of an element in an array, it has a numerical index, and this numerical index is used to identify that element. Okay, now how we can represent array in the memory? The arrays can be declared in various ways in different languages. Okay, all you know. Now for example, and for illustration we can take C array declaration. Here it is int, it is the data type of the array, array is the name of the array, and 10 is the subscripted value, or you can say it is the size of the array. Okay, 35, 33, these are the elements of this array. As there is a size 10, so there will be maximum 10 elements. Okay, as here these are the elements. The index है जिहड़ा अपन numerical index की गल कीती है, basically that is 0, 1, 2, it is the location of an element. Okay, now as per the above illustration, okay, following are the important points to be considered. The index starts with 0. Okay, array length is 10, which means it can store 10 elements, not more than 10, and each element can be accessed via its index. For example, we can fetch an element at index 6. Okay, this one is the sixth index. That means it, because it starts from 0, so sixth index will be this one, and it will be as 90. Now for accessing elements of an array, if you want to access any random element from an array, then you need the following information. First one is the base address of the array, second one is the size of an element in bytes, and third one is which type of indexing array follows. Okay, now there is a formula through which you can find the address of any element of a one-dimensional array. Okay, the formula is byte address of element ai equals to base address plus size multiplied by I minus first index. Okay, first index means जो तोड़े जिथों एरे तोड़ा स्टार्ट हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक एरे लेके चल रहे हैं ए, ठीक है, तो इतने की है -10, -9, -8 अप टू 1, 0, 1, 2. ठीक है, दीज आर दी एरे इंडेक्सेस। ना बेस एड्रैस की है जिथे तोड़े जेड़ा फर्स्ट एलीमेंट है, दैट मीनस ए -10 इंडेक्स वाला एलीमेंट है जोड़ा वो स्टोर होएगा, वो कितने स्टोर होएगा 999 के ऊपर, एंड साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज द 2 बाइट। फाइंड द लोकेशन ऑफ ए -1। ठीक है, इस इंडेक्स के ऊपर जी वैल्यू स्टोर है उसका एड्रैस फाइंड आउट करना है। तो इसमें किमें आप फाइंड आउट करांगे, LA -1, 999 इज द बेस एड्रैस। ओके, दिस वन इज द I माइनस फर्स्ट इंडेक्स -10 multiplied by size of an element. Size of an element is 2 bytes, and after calculation it will be 1070, where this element will be stored. Now there are various operations that can be performed on arrays. Traversal, that means processing each element in the list. Searching, finding the location. Insertion, adding a new element. Deletion, removing an element. Sorting, arranging elements in some type of order, ascending, descending, or alphabetically, so on. Then merging, combining two lists into a single list. So first of all we will see traversal. Okay, for traversal
you can say visiting each element of array exactly once, or in other words you can say अगर तुम एलीमेंट्स ਨੂੰ काउंट कर रहे हो जस्ट ठीक है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रैवर्सल की जरूरत पेगी या कुछ होर इदां दी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए तो ट्रैवर्सिंग करने के लिए लीनियर एरे के अंदर जी डिपेंड करती है उसके साइज के उपर एरे का साइज कितना अगर तुहाडे कोल एरे का साइज n है तो ट्रैवर्सल के अंदर कितने ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे ऑर्डर ऑफ n ओके तो एल्गोरिथम देखिए ट्रैवर्सिंग हियर एल इज अ लीनियर एरे विद लोअर बाउंड एल बी एंड अपर बाउंड यू बी ठीक है तो ये एल्गोरिथम है जो अपने को बेसिकली ऑपरेशन प्रोसैस अप्लाई करते हुए एल ए जो लीनियर एरे है उसका हरेक एलीमेंट सिंगल टाइम विजिट करेगा तो स्टैप 1 की है तुसी एक काउंटर लिया काउंटर वेरीएबल के और उसके अंदर लोअर बाउंड है जी ठीक है उस इनिशियलाइज कर रहे हो उस तो बाद तुसी अपने वाइल लूप अप्लाई करो और वो कितने तक जाएगी अपर बाउंड तक ठीक है प्रोसैस अप्लाई करोगे हरेक एलीमेंट के ऊपर दैट मीनस यू आर विजिटिंग ईच एलीमेंट and after that you are increasing the counter by setting k equals to k plus 1 ठीक है और after that you will exit तो similar way ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ while loop apply ਕੀਤੀ ਹੈ in the same way you can apply for loop here ठीक तो for loop ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ lb2 ub by 1 ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ otherwise by default it is increment by 1 and after apply process to la of k. Now come to the insertion and deletion in an array. Insertion refers to the operation of adding a new element and deletion refers to deleting an element. Okay तो insertion है जी different positions के ऊपर की जा सकती है but जो main considerations ने main cases ने under consideration those are कि insertion तुसी starting के ऊपर insert करनी है end के ऊपर करनी है middle location के ऊपर करनी है या किसी होर position के ऊपर करनी है ठीक है अगर तुसी बिल्कुल एंड के उपर करना चाह रहे हो इंसर्शन तो बहुत ईजी तरीके की जा सकती है प्रोवाइडेड कि तुहाडे कोले मैमरी स्पेस जी एलोकेटेड हैगी एरे दे लई वो इन्नी लार्ज होनी चाहिए है कि जो एडिशनल एलीमेंट्स तुसीं उहदे अंदर ऐड करन जा रहे हो उन्होंने अकोमोडेट कर सके ठीक है बट अगर किसी होर पोजीशन के उपर तुसीं इंसर्ट करना है तो तुहानूं जिन्ने उस पोजीशन तो बाद वाले एलीमेंट्स ने वो सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ तुहानूं नीचे नूं डाउनवर्ड शिफ्ट करने पैणगे और उस तो बाद फिर वो वैकेटेड पोजीशन के उपर तुसीं नवां एलीमेंट आ इंसर्ट करोगे तो इत्थे अपने कोल एल्गोरिथम है एल्गोरिथम के अंदर की है एल इज अ लीनियर एरे विद n एलिमेंट्स एंड k इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट k इज लेस दैन इक्वल्स टू n एंड दिस एल्गोरिथम इंसर्ट्स एन एलिमेंट आइटम इनटू kth पोजीशन ओके तो अपने को सब तो पहले आप काउंटर वेरीएबल लवांगे काउंटर वेरीएबल के अंदर की है j लिया j इक्वल्स टू n मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ने जिन्ने उहदे नाल आपां उसनूं इनिशियलाइज कर रहे हैं और उस तो बाद आप एक वाइल लूप लगा के उसनूं रेपिटेशन करांगे ठीक है तो j इज कद तक वैन j ग्रेटर दैन इक्वल्स टू k जब तक j की वैल्यू किस दे इक्वल नहीं आ जाती जिस पोजीशन के उपर आपां नवां एलीमेंट इंसर्ट करना है ठीक है तो लास्ट एलीमेंट तो स्टार्ट करके उस पोजीशन तक ही है सारे एलीमेंट्स नूं वन बाय वन डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं ओके बाय यूजिंग LA j प्लस 1 इक्वल्स टू LA ऑफ j ठीक है मीन दैट अगर अपने कोले 5 एलीमेंट्स ने तो उहदे अंदर आपां किस तरीके दे नाल उसनूं डाउनवर्ड शिफ्ट करांगे 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 दैट मीन 6 पोजीशन के उपर 5th पोजीशन वाले एलीमेंट नूं डाउनवर्ड शिफ्ट कर देंगे सिमिलर इन द सिमिलर वे 4th पोजीशन वाले नूं 5th के उपर 3rd वाले नूं 4th के उपर एंड सो ऑन जिथे तक आपां करना जिथे तक मतलब अपने k की वैल्यू होगी एंड देन डिक्रीज काउंटर सेट j इक्वल्स टू j माइनस 1 एंड एंड ऑफ स्टेप 2 लूप उस तो बाद फिर उस पोजीशन ते इस लूप के थ्रू की होएगा सारे एलीमेंट्स ने जिहड़े डाउनवर्ड शिफ्ट होने तो बाद वो पोजीशन वैकेट हो जाएगी ठीक है तो और उस तो बाद फिर आप की करांगे उस पोजीशन के उपर उस लोकेशन के उपर आप जिहड़ा नवा एलीमेंट आइटम इंसर्ट करना चाहुंदे उसनूं आपां असाइन करांगे उस लोकेशन नूं एंड आफ्टर दैट वी विल रीसेट n दैट मीन्स n इक्वल्स टू n प्लस 1 एंड आफ्टर दैट वी विल रिटर्न फ्रॉम हियर नाउ कम टू द डिलीशन सिमिलर वे डिलीशन के अंदर अगर आप तुसीं बिल्कुल लास्ट के उपरों डिलीशन करना चाहुंदे हो एलीमेंट डिलीट करना चाहुंदे हो तो इट इज़ वेरी ईजी ठीक है बट अगर तुसी किसी होर लोकेशन के उपरों एलीमेंट डिलीट करना चाहते हो तो उसके रिवर्स इंसर्शन के रिवर्सिबल तुहानूं की है सारे हुण एलीमेंट्स वो अपवर्ड शिफ्ट करने पैणगे जिस एलीमेंट नूं तुसी उत्थों डिलीट करके उस लोकेशन नूं वैकेट कर लिया उस लोकेशन तक सारे दे सारे एलीमेंट्स ने जिहड़े उस तो नीचे वाले वो अपवर्ड शिफ्ट करके उस लोकेशन नूं कवर करना पेगा तो इसके लिए अपने को एल्गोरिथम है डिलीट
here L is a linear array with n elements and k is a positive integer such that k is less than equals to n. ठीक है, so this algorithm will delete an element item from kth position. तो step 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, set item equals to LA K, that means सब तो पहला आप आइटम नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर आप उस पोजीशन पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू अवेलेबल है उसको आप आइटम नू असाइन कर लिया, ठीक है, उसको कॉपी करके रख लिया. स्टेप 2 के अंदर वी आर टेकिंग अ फॉर लूप j इक्वल्स टू k टू n माइनस 1, ठीक है. तो उस तो बाद जो k तो स्टार्ट करके n माइनस 1 तक आप जिहड़े एलीमेंट्स ने उन्होंने हुण आप अपवर्ड शिफ्ट करांगे. उन्होंने किवें अपवर्ड शिफ्ट करना, n माइनस 1 तक करन दा की मकसद है क्योंकि अपने कोले टोटल एलीमेंट्स n ने और जिस टाइम आप इधर j प्लस 1 करांगे तो इस केस के अंदर इत्थे n माइनस 1 आके टोटल nth एलीमेंट ही जिहड़ा तुहाडा अपवर्ड शिफ्ट होए, ठीक है. तो इसलिए आप इत्थे जिहड़ी लूप है वो सिर्फ k टू n माइनस 1 तक कर रहे हैं. सो LAJ इक्वल्स टू LAJ प्लस 1 and after that reset n equals to n minus 1, क्योंकि इत्थों तुहाडा की है एक एलीमेंट ऊपर शिफ्ट हुंदा जाएगा और वो वाली लोकेशन जिहड़ी लोकेशन दे उपरों तुसी एलीमेंट रिमूव करके आइटम दे अंदर कॉपी कर लिया सी, हुण उत्थे तक जिहड़े वो लोकेशन नू तुसी कवर कर लोगे बाय शिफ्टिंग दी एलीमेंट्स अपवर्ड, ठीक है. और उस तो बाद जो तुहाडे कोले जिहड़ा n है वो रीसैट होएगी क्योंकि एक एलीमेंट तुसी डिलीट कर चुके, तो n विल बी n minus 1 and you will return from here. Now come to the analysis of insertion and deletion operation, ठीक है. तो जिहड़ा बेस्ट पॉसिबल केस है इंसर्शन ऑपरेशन दे अंदर वो की है जिस टाइम तुसी बिल्कुल लास्ट पोजीशन दे अंदर ऊपर इंसर्ट कर जा रहे हो नवा एलीमेंट, ठीक है, क्योंकि इस केस के अंदर कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, कोई किसी मूवमेंट की जरूरत ही नहीं है, ठीक. दी वर्स्ट केस की है अगर तुहानू एलीमेंट बिल्कुल स्टार्टिंग दे ऊपर बिगनिंग दे ऊपर इंसर्ट करना पै रहा तां तुहानू सारे दे सारे एलीमेंट्स ने जिहड़े वो डाउनवर्ड शिफ्ट करने पैणगे, ठीक है. तो उस केस के अंदर जिहड़ी तुहाडी लूप है वाइल लूप है दैट विल एग्जीक्यूट n टाइम्स, दैट मीन्स ईच मूविंग वन एलिमेंट डाउन. सो कंप्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन विल बी ऑर्डर ऑफ n, दैट मीन्स लीनियर टाइम, क्योंकि आपां जिस टाइम एल्गोरिथम कंप्लेक्सिटी पढ़ी सी उहदे विच आपां की पढ़िया सी कि जिहड़ा आपां वर्स्ट केस लैके चलदे हैं, ठीक है, कंप्लेक्सिटी दे अंदर. तो वर्स्ट केस की है कि अगर तुहाडे कोल सब तो बिगनिंग दे उपर तुसी नवा एलीमेंट इंसर्ट करन जा रहे हैं तो सारे एलीमेंट्स तुहानू डाउनवर्ड शिफ्ट करने पैणगे और उस केस दे अंदर तुहाडे कोल जिहड़े n टाइम्स लूप है तुहाडी एग्जीक्यूट होएगी in the case of n elements. And in the same way best case in deletion while element to be deleted is the last element of the array, but in this case because in this case no element is moved up, ठीक है. but worst case कदों होएगा जिस टाइम तुसी एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन दे उपरों डिलीट कर रहे हो और उस केस दे अंदर तुहानू n माइनस 1 जिन्ने भी पिछे n माइनस 1 एलिमेंट्स रह गए n दे विचों एक रिमूव करके सारे दे सारे तुहानू अपवर्ड शिफ्ट करने पैणगे. तो जिहड़ी तुहाडी वाइल लूप है या फॉर लूप है वो तुहाडी किन्ने टाइम्स चलेगी n माइनस 1 टाइम्स, ठीक है. तो n माइनस 1 टाइम दे अकॉर्डिंगली आपां उसका कोफिशिएंट है जिहड़ा या पिछलियां टर्म्स ने कॉन्स्टेंट टर्म्स ने उन्होंने आपां रिमूव करन तो बाद जो जिहड़ा तुहाडा डिलीशन ऑपरेशन है उसकी कंप्लेक्सिटी क्या आएगी ऑर्डर ऑफ n, दैट मीन्स लीनियर टाइम. थैंक यू.